ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਖ ਲਿਹੁ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ, ਸੁਨੋ ਬਿਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਕੋਟ ਬਰਾਦ ਭਰੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हमें अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी। वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाली हो, जो बड़े अदब सत्कार सन्मान सहित बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज गरीब नवाज जी दे बख्शिशां मेहरामतां भरे पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਥਵਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ बड़े अदब सहित सरवण कीते ने।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਤੁਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਉਥਾਨਕਾ ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 1413 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਗਮੀ ਵਿੱਚ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ, ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ, ਭੀੜ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਵੈਦ ਕੋਲ ਰੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਦ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ।
वो आखेगा भी तेरा आ रोग है, मैं इस तरीके ना ठीक करांगा। ते रोगी आके नहीं, ये मैनू नहीं मंजूर, तू मेरे हिसाब नाल इलाज कर, ये मुश्किल है। यही आदत आप गुरु कोल आके भी वरतते हैं। चाहुंदे हैं दुखों की निवृत्ति। साडा मकसद की है? साडा मकसद सिर्फ इन्ना भी जिंदगी सुख नाल बतीत होवे, बस इस तो परे तो कोई मकसद नहीं ना। जीवन विच सुख चाहिए, गल तो नहीं है। और एक होर बेनती, ये सोच कोई माड़ी सोच नहीं है। ਇਹਦਾ जे तुसी पिछोकड़ लभोगे ना गुरबाणी चों भी मेरे अंदर ये सोच किवें आई कि मैं आनंद विच रवां, सुख विच रवां, ਇਹਦਾ निरोल कारण तुहानूं धार्मिक लभेगा। कारण कि एक परिवारां च उदाहरण देवां, जिहड़ी धी राणी ने पेके घर विच सुख माणे होण, ਉਹ ਸਹੁਰੇ परिवार विच भी सुख की अभिलाषा रखती है। तो सुख की अभिलाषा रखनी कोई गुनाह तो नहीं है, कोई गलती नहीं है। जे मैं ये चाहवा कि मेरा जीवन आनंद ना बतीत होवे, ये कोई गुनाह नहीं है। हाँ, इस लालसा की पूर्ति लई कई बारी आप गुनाह कर बैठते अज्ञानता च। इतों तक ये सोच माड़ी नहीं। कारण की ये सोच कितों पैदा हुई? मेरी सुरत विच, मेरे जिहन विच सुख दी, आनंद दी ये सोच कितों पैदा हुई? और ये तो बाहरों किसी ने नहीं सिखाई, कितने स्कूल तो, किसी कॉलेज तो, परिवार तो किसी ने नहीं दसिया। ये तो जन्म तो बाद उस वेले ही शुरू हो गई। पहले प्यार लगा तन दुध, सुख ते दुख का अनुभव बच्चे नूं जन्म हुंदियां सार माता ते पिता की पछाण तो पहला हो जाता है। इनू भुख लगी, इनू दुख महसूस होया, दुध मिल गया, इनू सुख महसूस होया। भुख लगी, इनू दुख महसूस होया, रोन लग गया। दुध मिल गया, सुख महसूस होया, चुप कर गया। ये सुख दुख है ना, सुख दुख की समझ। और ये ख्याल जन्म तो ही साड़ी सुरत विच आ जाता। क्यों आता है? क्योंकि जिस परम पिता परमात्मा तो आप सारे आए हैं ना, ये जिंद जीव आत्मा जिस परम आत्मा तो आई है, इस जिंद ने अपने उस पिता के घर विच कोई दुख नहीं वेखिया। मालिक दे घर दुख है ही नहीं, गुरु घर दुख है ही नहीं। इत्थे की है? तेरे घर आनंद वधाई तुध कर। इत्थे आनंद ही आनंद है, इत्थे सुख ही सुख है, इत्थे खुशियां ही खुशियां, इत्थे खेड़े ही खेड़े। कई बार होंदा ना कि गुरु किसी नूं दुख नहीं दिंदा। क्यों नहीं दिंदा? गुरु कोल है ही नहीं। जो चीज़ जिहदे कोल होवे गुरु ही देगा ना। गुरु कोल दुख है ही नहीं, गुरु किवें देवे? गुरु किसी नूं फिकर नहीं दिंदा, गुरु किसी नूं चिंता नहीं दिंदा। क्यों नहीं? गुरु कोल है ही नहीं। गुरु कोल चिंता नहीं, गुरु कोल गम नहीं, गुरु कोल फिकर नहीं। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भय है, गुरु च नहीं है। जो गुरु च नहीं है वो गुरु नहीं दिंदा। गुरु कोल आनंद है, गुरु कोल सहज है, गुरु कोल टिका है, गुरु कोल सुकून है। जे तू आनंद की प्राप्ति चाहना ताई ते आवाज मारी न, जो सुख को चाहे सदा। केड़ा सुख? सदीवी सुख। जे चाहना है ते आ शरण राम की ले, वो तेन गुरु को मिलेगा। होर कितों क्यों नहीं मिलेगा? होर कितों इसलिए नहीं मिलेगा कितों होवे ते मिले। जिथे जिथे लभदे आ उथे है नहीं, सिर्फ परछावां है, सिर्फ झलकारा है। जिवें दो तरह का भुलेखा मिरग नूं पैंदा, एक ते मारू थला विच पानी दा,
और एक कस्तूरी की खुशबू का। दूर दराडे रेतली थां ते दिखाई पैंदा पानी होएगा, दौड़ के उस जगह ते जांदी, उत्थे पानी नहीं, उत्थे भी रेता। पानी नहीं है, उहदा झलकारा पै रहा है, उहदा भुलेखा है, उहदा अक्ष है। इस तरह जिथों जिथों सानू सुख की आस जां सुख लगता है ना, उत्थे सुख है नहीं, सुख का भुलेखा है। सुख का भुलेखा है कि पैसे विच होएगा, भुलेखा है परिवार विच होएगा, भुलेखा है धन दौलत विच होएगा, ये भी भुलेखा है कि पदवी विच होएगा, मेरी पदवी वध जाए, होर उच्चा होर उच्चा होर उच्चा हो जा, सुखी हो जागा। नहीं, होर दुखी होएगा, सुखी नहीं होएगा, दुखी होएगा। गुरु बख्शिश कृपा करते ने ते सानू ये समझाते ने भी तू गुरु कोल आके इतों तक तेरा कर्म है, अपना दुख दसना, ये तेरा कर्म है, तेरा हक है, तेरा फर्ज है और तेरा मानवी है। गुरु ने दुख की निवृत्ति किवें करनी है, इत्थे अपनी अकल ना वरती, इत्थे ना अकल वरती, इत्थे फिर जो गुरु आखे उस तरह कर ली। बच्चे नूं स्कूल भेज दिंदे, क्लासरूम बैठ जाता है, बच्चे ने अपनी मर्जी नाल नहीं पढ़ना, टीचर ने अपनी मर्जी नाल बच्चे नूं पढ़ाउणा है। बच्चा स्कूले अपनी मर्जी नाल पढ़दा है कि टीचर की मर्जी नाल पढ़दा है। जे अपनी मर्जी नाल पढ़न लगे तो तुसीं सियाणे हो, साडा बच्चा कख नहीं पढ़ सकदा, वो तो चाहता ही नहीं पढ़ना, वो तो आने बहाने करेगा। अपनी मर्जी नाल कोई मरीज वैद कोलों ठीक नहीं हो सकता, अपनी मर्जी की दवाई खा के। अपनी मर्जी नाल उस्ताद कोलों कोई तालीम अपने तरीके नाल लेना चाहे नहीं ले सकता। अपने तरीके नाल असी गुरु नूं आखीए भी तू मैनू सुखी ते कर, पर मेरे तरीके ना कर, असी कदी सुखी नहीं हो सकते। और शायद इसे करके अज तक सुखी नहीं हाँ। एक दूसरे दे नाल अपना भुलेखा ते पढ़दा है, एक दूसरे तो अपना पढ़दा है, इउं लगदा भी वो बड़ा सुखी, वो लगदा वो बड़ा सुखी। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने नहीं, कोई भी सुखी नहीं। जो जो दीस है सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जिहड़ा रोगी है वो सुखी किवें होएगा। फिर जिन्हां लोकां कोल माया थोड़ी है, पैसा थोड़ा है, घर बार छोटा है जां नहीं है, उन्हां नूं इउं लगदा है जिन्हां दे वड्डे वड्डे महल मकान घर ते बड़ा पैसा है, इन्हां कोल सुख होएगा। मारे कहते मेरे तो पुछ, बड़े बड़े जो दीस है लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। तुसी इतिहास चो औरंगजेब का पक्ष पढ़ोगे तो औरंगजेब का गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत तो बाद का जिहड़ा समा है वो ये है भी औरंगजेब वर्गा दुखी इंसान ये सारी धरती ते कोई नहीं लभेगा। कि उहदे कोल पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, कि परिवार नहीं है, फौजा नहीं है, पूरे देश का चक्रवर्ती बादशाह, फिर भी सब तो वध दुखी। इसने जालम लोगों का तुम इतिहास पढ़ोगे ना, हिटलर चंगेज खान, ये दुनिया के सब तो दुखी इंसान ने। और जिन्हें तुसी भगतां का जीवन पढ़ोगे, कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, सदना जी, होर भी मीराबाई, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी च जिहड़े नहीं भी उन्हां तो बिना भी जिन्हें भगत तुसीं पढ़ोगे, ये दुनिया के सब तो सुखी इंसान ने। हुण तुसी ये दुनिया के सब तो दुखी लोग जिन्हां कोल इन्नी दौलत इन्ना पैसा, दुनिया के सब तो सुखी लोग जिन्हां कोल कख भी नहीं। फिर सुख का ते दुख का कारण की है? तो महाराज कहते ने सुख नाही
बहु देश कमाए। जो कोई कुल संसार की दौलत भी इकट्ठी कर लेना तो आखे सुख होएगा, मर कहते नहीं होएगा, सुख है ही नहीं। दौलत च सुख नहीं है। जिस जिस चीज तो तुहानू सुख भासदा है, सुख लगदा है, दौलत नाल वो चीज मुहैया हो सकती है, पर उहदे च सुख नहीं। इनू समझ लेना। मैनू लगता है मेरे को वड्डी गड्डी होवे, ये दौलत नाल आ सकती है, दौलत खर्च के ले आओगे, जो तुसी सोचे है कि इतों मिल जाएगा, वो चीज़ मुहैया हो जाएगी, पर उहदे च सुख नहीं है, सुख नहीं है उहदे च। बहुत वड्डे मकान च सुख है, माया नाल वड्डा मकान बन जाएगा, पर उहदे च सुख नहीं। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। महाराज दी बाणी च पढ़ियो, एक कखां दी छपड़ी, एक हीरे मोतियां नाल जड़त महल, दोनां च सुख किथे है। महाराज कहंदे भली सुहावी छापरी जामै गुण गाए, कित ही काज न धौल हर जित प्रभ बिसराए। वो कखां दी कुल्ली, कखां दी बनी हुई छपरी सोहनी है, सुखदाई है, उहदे च रहण वाले भी आनंद माणदे ने। जिस कखां दी कुल्ली चों रब दे नाम दी आवाज़ आउंदी है, ते वड्डे वड्डे महल मकान माड़ियां रब दे नाम तो भी होणियां। मारे कहंदे किसे काम नहीं, अग लग जाए उन्हां नूं, किसे काम नहीं। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने पावन बाणी च वार वार ये समझा दिता है, जेड़ियां जेड़ियां चीज़ां विच तू सुख समझी बैठा है, उत्थे सुख नहीं है, उत्थे नहीं है। जे तेनू लग रहा है तो तू भुलेखे च है, तू अज्ञानता विच है। जे तेनू लग रहा ना भी रब दे नां तो बिना किते होर है, तो मारे कहंदे नहीं। मारे कहते बाकी तो गल्लां ही व्यर्थ, होशियां गल्लां ने, कख नहीं। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। होछियां गल्लां ने। जिस घर विच वाहिगुरू जी का नाम नहीं, बड़ा कुछ है, सब होछा है, बहुत कुछ है, सब कुछ है। मस्कीन साहब एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिंदे ने कि परमात्मा दे नाम तो बिना दुनियावी गल्लां ते की, परमार्थ दे सारे कर्म भी फोकट ते बेकार ने। जिवें लाड़े तो बिना बरात होवे, बरात जारी है, ढोल वाजे वज रहे ने, सैकड़े बराती ने, की हो रहा है, बरात जारी है, लाड़ा किथे, लाड़ा ते है ही नहीं। जिवें लाड़े तो बिना बरात शोभहीन है, इसे तरह वाहिगुरू दे नाम तो बिना धार्मिक कर्म भी शोभा तो ही ने, ते फोकट किसे काम नहीं। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग, मन मध्य फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हौमे बहु रतना, शरीर कटाए हौमे कर राती, वर्त नेम करे बहु भाती। इन्ने कर्म हो गए ना, ये धार्मिक कर्म ही मने जाते हैं ना। पातशाह कहते नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। ये धार्मिक कर्म भी परमात्मा दे नाम दे तुल नहीं। बाकी दे कर्म ते परमात्मा दे नाम दे तुल की हो सकते ने, ते होशियां गल्लां ने। जे तू चाहना है कि दुखां की निवृत्ति होवे, इन्नी इतों तक अकल वरत कि गुरु कोल जाके अरदास कर, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर, ये तेरा हक है।
और केवल तू ही नहीं, कुल संसार दे जी गुरु कोलों मंगदे ने ते जरिया केवल अरदास है। सब तुझे पासों मंगदे नित कर अरदास। तू अरदास कर। दुख दूर किवें होणगे, उहदा तरीका की है, ये तू नहीं सोचना। जे तू इन्नी अकल दा मालक हुंदा ना, जे इन्ना सियाणा हो जांदा ते कदों दा सुखी हो गया हुंदा। अपनी अकलां ते बड़ा कुछ करके वेखिया, किन्ने तोड़ जोड़ कीते, उतार चढ़ा कीते, किन्ने मित्र बनाए, किन्ने छड्डे, किन्नियां नाल दुश्मनी पाई, किन्नियां नाल बेईमानियां भी कीतियां, भरावां नाल बेईमानियां कीतियां, सकिया नाल बेईमानियां कीतियां, बड़ियां ठगियां मारियां। भरा भरा नूं उहदा हक नहीं दिंदा। क्यों? इसे लिए ना कि मेरे को ज़्यादा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसे करके ना की हो गया, फिर तां भी नहीं होया। जे तू अपनी अकल नाल सुखी हो सकदा हुंदा ना, कदों दा हो गया हुंदा। जे तू अजे तक भी दुखी है तो मतलब यह है कि तेरी अकल दी, तेरी बुद्धि दी ये ताकत नहीं कि तू सुख का रस्ता लभ ले। फिर तू इत्थे ढह पा। इसलिए मत्था टेकण का अर्थ गुरु नूं समर्पित हो जाना, गुरु अगे अपनी अकल नूं, अपनी सियाणप नूं सरेंडर कर देना, ये मन्निया। ते गुरु ने दुख दूर, दुख निवृत्त किवें करने ने? महाराज कहंदे ने पहलां ते अपनी सोच बदल। सियाणे कहंदे ने भी जदों दृष्टि बदल जाती है ना, तो सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल जे ना, नज़रिया बदल जे तो नज़ारा बदल जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब च जिक्र है, सुखीए को पेखे सब सुखिया, रोगी के भाणे सब रोगी। जिहड़ा सुखी बंदा है ना, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ जैसा अन्न है तैसा ही मन है। जिहो जिहा भोजन छकेगा इहदियां विचारां भी उहो जिहियां होणगियां। ये जो खाए पिएगा इहदी विचार भी, इहदा मन भी उहो जिहा होएगा। वो पक्ष दूसरा है, इसलिए मैं उहनूं छेड़ना नहीं। जो बेनती कर रहा सा, पहली गल ये, जे तू सुखी होना चाहुंदा है वो सब बाद च होएगा। पहला अपनी सोच बदल, अपनी विचार बदल। महाराज तुसी करो कृपा, दसो की करा? महाराज कहंदे अज तो ये सोच बदल दे कि पैसे विच सुख है, धन विच सुख है, परिवार विच सुख है, उत्थे सुख है, उत्थे सुख है, किते नहीं। फिर महाराज फिर किथे है? सब कहंदे ने दुख विसारण शब्द है। सुख है गुरु दे शब्द विच। और गुरु का शब्द इत्थे बरीकी पढ़ियो पंक्ति च। महाराज ने नहीं कहा कि गुरु का शब्द दुख दूर कर देगा, दुख की निवृत्ति कर देगा, दुख मिटा देगा। महाराज ने कहा दुख नूं विसार देगा। दुख ते दुख रहेगा ही नहीं, तेरे अंदर उस दुख की याद भी नहीं रहेगी। दुख की याद तक भुला देगा गुरु का शब्द। भुल जाएगा कि किते जीवन विच दुख से, क्योंकि याद करके बंदा दुखी है। ये भी मस्कीन जी का बचन आप जी दे नाल साझा करा। एक बड़ा प्यारा नुकता दस देने कि मनुख हमेशा हर वेले दो समयां विच रहिंदा है, या पास्ट विच रहेगा या फ्यूचर विच रहेगा। मेरा शरीर इत्थे है, सुरत इत्थे नहीं है, मन इत्थे नहीं है, मैं इत्थे नहीं हाँ, कित्थे हाँ? ਜਾਂ गुजरे हुए समय विच ਜਾਂ आने वाले समय विच। मन प्रजेंट नहीं रहिंदा। इहदा कारण भी है क्यों नहीं रहिंदा। जिवें शरीर नूं हिल जुल वास्ते तोरे फेरे लई स्पेस चाहिदा है, जगह चाहिदी है।
ਇਸੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਇਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਪਕੜ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ 1 ਨਿਮਕ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਪੇਸ ਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਝੱਟ ਟੱਪ ਕੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 'ਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਜੇ 2 ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 'ਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਤ ਗਈ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੜਫਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਯਾਦਾਂ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਗੀ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਗੀ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਚਿੰਤਾ। ਬੱਚਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ। 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ BA MA MBA ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਵਾਨ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,
तेरे अंदरों दुखां दियां यादां मिटा देगा। केवल गुरु दी याद है, शब्द दी याद है, प्रभु दी याद है। ध्यान धरो तेको मन में जेको अमतोज सबे जग छायो। एक गुरु दी याद है जिहड़ी मनुख नूं आनंद नाल भर दिंदी है। पैसे दी, परिवार दी, गुजरे हुए समय दी, जवानी दी, बचपने दी कोई भी याद मनुख नूं सुख नाल, सहज ना, टिका ना, आनंद ना नहीं भरेगी। एक वाहिगुरू दी याद है जिहड़ी मनुख नूं सुख नाल लबालब भर दिंदी है। उहदी याद विच इन्ना सुख है, उहदे चिंतन विच इन्ना सुख है, जिदन वो मिल गया उदन कोई दुख किवें रहेगा। इसलिए जिथे असी अपनी ये सोच बदलनी है भी जिथे जिथे मैं हुण तक सुख समझदा है उथे सुख नहीं, सुख गुरु दे शब्द विच है, सुख गुरु दे शब्द विच है। ते जदों सानू ये समझ लग गई कि गुरु दे शब्द विच सुख है, फिर अपनी अरदास भी बदलनी है, अपना मंगण दा ढंग तरीका भी बदलना है। हुण थोड़ा जिहा इत्थे नुकता समझ लियो। आपां सारे गुरु कोल आउंदे आ, मंगदे आ, अरदासां करदे आ, जोदड़ियां करदे आ। अपने अपने जीवन विच विचार झात मारियो। जिस तरीके नाल तुसीं अरदास करदे हो, मंगदे हो, ये तरीका तुहानूं गुरु ने दसिया जां तुसीं आप अपनाया जां तुहाडे माता पिता ने सिखाया? ये तुसीं विचारियो। तुहाडीआं बड़ियां समस्या हल हो जाणगीआं। ते जदों आपां वेखांगे ना, ये जो तरीका आपां अपनाया अरदास दा, ये आपां गुरु कोलों नहीं सिੱਖਿਆ। जां ते आप जां अपने वड्डियां तो। माता पिता बच्चों नूं लैके आउंदे ने, वेखीदा गुरु हजूर उन्होंने सिखाउंदे ने, बेटा इत्थे हथ जोड़ के खलोना है, अखां बंद करके खलोना है। छोटे छोटे बच्चे कई बार अरदासा करते होंदे ने, देखण नूं बड़ा सोहना लगदा है, बड़े सोहने लगते हैं। हथ जोड़े होंदे ने, अखां बंद कीतियां, मूँह बोली जा रहे हैं, कुछ बोली जा रहे हैं, की कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। उन्हां नूं ओह मंगना किन्ने सिखाया? माँ ने सिखाया, प्यो ने सिखाया। गुरु कोल इस तरह मंगना, आ मंगना। बहुत आदाद आपां इसे तरह ही सिੱਖਿਆ है, जां अपनी मर्जी नाल जां साडे माता पिता ने सानू सिखाया। गुरु कोलों मंगना नहीं सिੱਖਿਆ। जिस तरीके नाल असी हुण तक मंगिया है जां मंग रहे आ, ये तरीका ठीक नहीं। बड़ी निमरता सहित हथ जोड़ के बेनती, कोई किंतु परंतु कटाक्ष नहीं है, एक विचार है, ये तरीका ठीक नहीं। क्यों नहीं? जे ये तरीका ठीक हुंदा ते हुण तक असी सुखी हो गए हुंदे। कि सुखी होने लई 40 साल 50 साल लगणगे? 70 साल की उम्र हो गई, अजे सुखी नहीं, इन्ना समा लगेगा? सुखी होने वास्ते इन्ना समा नहीं। नहीं, गुरु ते झट सुखी कर दिंदा है। फिर कमी कित्थे है? फिर कमी मेरे च है, मैनू गुरु कोलों मंगण दी जाच नहीं आई। ते जिहड़ा मैं इन्ने सालां तो मंगिया वो की? ते सतगुरु कहंदे तू सुख मंगिया ही किदण है मेरे कोलों? गुरु साहब कहंदे ने तू इत्थे 20 सालों तो 30 सालों तो 50 सालों तो मंग रहे आ रहा, ठीक, पर तू सुख नहीं मंगिया मेरे कोलों। ये मन कि तू सुख नहीं मंगिया। महाराज मैं तो सुख ही मंगिया, ਧੀਆਂ पुत मंगे, परिवार मंगिया, नौकरी, जायदाद, धन दौलत मंगे, सुख ही तो मंगिया। पर कहते नहीं, तेरी समझ विच फर्क है। तू सुख नहीं मंगिया, तू दुख मंगे ने। मंगे दुख ने, दुखा नूं ही सुख समझ के मंगदा रहा। ते मारे फिर ते सब कहते तू गुरु कोल आके दुख मंगे ने। किदां? विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। ते मंगना की सी? दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। उतरे मन की भुख। गुरु को आ मंगना सी, महाराज मेरे मन की भुख उतर जाए बस। एक होर बेनती, अपने अपने परिवार च ते अपनियां 2 पीढ़ियां पिछे तक सारे वेख लियो। अज आपां अपने परिवार विच माइक तल ते
उन्हें परेशान नहीं आ जिन्हें साडे वडेरे रहे ने। साडे वडेरियां कोल अज वर्गे घर नहीं सी, अज वर्गे कपड़े नहीं सी, अज वर्गियां गड्डियां नहीं सी, सुखां दे साधन नहीं सी, अज वर्गा कुछ भी नहीं सी। साडे वडेरियां कोल जो कुछ साडे कोल है ना, बाकियां नाल कंपेयर ना करो। अपने पिता अपने दादे तक इन्हां कंपेयर कर लो अपने आप नूं ते तुसीं वेखोगे दादे कोलों कोई विरला परिवार होएगा जिहड़ा डाउन गया होवे, नहीं तो बहुत आदाद बहुत कुछ है। दादे कोलों कुछ नहीं सी जो कुछ पिता कोल सी, पिता कोल वो कुछ नहीं जो कुछ अज मेरे कोल। ये सच है ना। इस दे बावजूद फिर तो मैनू सुखी हो जाना चाहिए सी, फिर तो मैनू मेरे कोल वधिया ही है ना पहला तो, फिर तो सुखी होना चाहिए सी। पर मैं सुखी नहीं होया, मैं होर ज़्यादा दुखी हो गया, होर ज़्यादा दुखी हो गया। क्यों? मंग ठीक नहीं। हुण एक होर इन्हें थोड़ा जिहा विचार लेना ते काले ना पैना। गुरु कोल आके ये नहीं आखना गुरु मैनू रजा दे मैं रज जावां, ये नहीं आखना। अपनी मंग बदलो। गुरु कोल आके आखना सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो, मैनू भुख बख्शो, भुख भुख दी दात बख्शो। और शायद ये गल अटपटी लगे क्योंकि अपने सुभाव विच ये गल नहीं कि गुरु कोलों भुख, गुरु कोलों ते रजन जाईदा है। और बेनती शरीर दी इलामत दा मुख कारण है जे किसी बंदे नूं भुख ना लगे। जिहड़े बंदे नूं भोजन दी भुख नहीं ना लगदी वो बंदा कुछ करन दी जरूरत नहीं, रोगी हो जाता है। तो जिहड़े भुख की गल मैं कर रहा, जिहड़े मनुख नूं गुरु दे शब्द की भुख नहीं लगती, कुछ करन दी जरूरत नहीं, वो बंदा रोगी हो जाता है, वो बंदा दुखी हो जाता है। साडे दुख का कारण ही है कि सानू भुख नहीं लगती। किहड़ी भुख? बाहरों तो बड़ी लगती है, घरों भी खाने, तुरे तुरे जाते, बाजारों भी हथ मार जाने। बैठिया बैठिया जी करे 10 मिनट सबर नहीं हुंदा, फोन करके झट मंगा लेने। बाहरों तो बहुत भुख लगती है, बड़ा खाने, मारे कहते ये भुख नहीं। ये भुख का संबंध तन नाल है, ते सुख ते दुख का संबंध तन नाल नहीं। तेरे सुख ते दुख का संबंध मन नाल है। चिंता का संबंध तन नाल नहीं, फिक्र का संबंध तन नाल नहीं, गमी का संबंध तन नाल नहीं, ईर्खा का संबंध काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, हंकार का, द्वेष का, तृष्णा का संबंध तन नाल नहीं, वो मन नाल है। इसलिए मन की भुख गुरु कोलों मंग। तो दुखी तन करके नहीं है, तन करके तो बड़े इलाज ने, ना मुराद बीमारियां दे भी इलाज आ गए। बड़ा डरे, साल 2 साल औखे निकले, करोना का भी आ ही गया ना, किते ना किते काफ़ी प्रबंध हो ही गया। आने वाले समय च गुरु कृपा करेगा होर हो जाएगा। तन दे रोग का तो इलाज हो जाएगा, पर मन दे रोग का इलाज गुरु तो बिना कोई नहीं कर सकता, तो किसी तो नहीं होना। इसलिए अज तो ये मंग, सतगुरु मैनू भुख नहीं लगती। बहुत तादाद दुनिया ते ऐसे लोगों की है जिहड़े मन के तल ते जिन्होंने भुख नहीं लगती। बहुत तादाद उन्होंने लोगों की है जिन्होंने भोजन की तो बहुत भुख लगती है, पर बहुत तादाद उन्होंने लोगों की जिन्होंने भजन की भुख नहीं लगती, भजन की भुख नहीं लगती। तो महाराज ने कहा इत्थे भुख मंग भजन की। सच नाम की लागै भूख। अज तो ये मंगना, महाराज कृपा करो मैनू भुख लगनी शुरू हो जाए। केदी भुख? सच नाम की लागै भूख। जिदन भुख लग गई तो जपना शुरू किया, जदों जपिया फिर वो तो भूख है, खाए चलिए दुख। कितना सौखा तरीका है, पर आप कदी अपनाया ही नहीं, किते वरतिया नहीं। तेरे दुखों का कारण सिर्फ यह भी तेनों भुख नहीं लग रही, कोठियां धन दो, ये नहीं मंगना, छड़ दे अज तो। एवें रट्टे पिट्टे लाए ने, जो वड्डियां तो सिक्ख्या सिखाया उही अगे, उही आप अगे न्याणियां नूं सिखाता, उही कुछ करी जाने ना। छड़ दईए इन्हां नूं, आ मंगीए। जद आ मंगो सतगुरु तेरे नाम की भुख लगे। जे होर शब्द ऐड करने नहीं तो एक गल होर मंग लो कि
सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। वो अकल दे जिहदे नाल तैनूं जपां। ते जिदण रब दे नां दी भुख लगन लग गई, अमृत वेले दी भुख, नितनेम दी भुख, सिमरन दी भुख, नामदान इशनान दी भुख, गुरु कोल आउण दी भुख, बाणी पढ़न दी भुख, कथा कीर्तन करन दी ते सुणन दी भुख, गुरु गुरु करन दी भुख, दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। ये भुख इन्नी ज़्यादा वध जाए कि एक श्वास भी बिरथा ना जाए। तो महाराज कहते गुरु दी शब्द दी कला, गुरु दे शब्द दी बरकत इन्नी वरतेगी, तेरी जिंदगी चों भुख भी चले, दुख भी चले जाएंगे, दुखों की याद भी चली जाएगी। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। ये दुनियावी भुखा रब दे नाम ने मिटा देनियां ने, ये बाहरों नहीं। बिना संतोख नहीं को राजे तू नहीं रज सकता, जिन्ना मर्जी जतन कर ली। दुख विसारण शब्द है, दुखों की निवृत्ति शब्द है। तो शब्द वो कमाएगा जिन्हों भुख लगेगी शब्द की, जिन्हों शब्द की भुख लगेगी। तो शब्द की भुख किनू लगेगी? जे मन वसाए कोई, जिहड़ा गुरु के शब्द नूं मन च वसाएगा। और इहदा कुछ कुछ संबंध ते भोजन वर्गा ते गुण थोड़े ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ने। जिवें जिवें भोजन छकते जाओ भुख घटती जाती है, मनुख तृप्त होंदा जांदा तन दे तल ते। और भजन का यह गुण है, जिवें जिवें भजन करते जाओ तिवें तिवें मन की भजन करन दी भुख होर ज़्यादा वधदी है, घटदी नहीं है, होर वधदी है, होर वधदी है। बाणी पढ़दियां पढ़दियां बाणी पढ़न की भुख होर वधदी है, होर वधदी है। ये होर जपदा है, होर जपदा है, भुख होर वधदी है, भुख होर वधदी है, फिर होर जपदा है, फिर जपदियां 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 पहुँच जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। उत्थे तक पहुँचना, इन्नी भुख वध जाए कि उत्थे तक पहुँच जाइए। जे मन वसाए कोई। हुण मन किवें वसेगा? गुर कृपा ते मन वसे, तेरी अकल नाल नहीं। फिर बेनती दोहरावां, जे साडी अकल नाल कुछ होना हुंदा ते हुण तक हो गया हुंदा, जे नहीं होया ते साडी अकल दी ही घाट है। अपनी अकल छड्ड ते गुरु दी अकल ले, गुर कृपा ते मन वसै। हिरदे च शब्द वसेगा, सच्चे नाम की भुख लगेगी, गुरु की कृपा नाल कर्म प्राप्त होए। ते गुरु की कृपा तेरे कीते हुए कर्मां नाल मिलनी। सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। वो तेरे कर्मां नाल जिन्ना जिन्ना आउंदा जाएगा, तरला लेंदा जाएगा। जिन्ना मैला कपड़ा होवे ज़्यादा वार धोना पैंदा है। तेरे कीते हुए नेक कर्म फलीभूत होण, गुरु की कृपा का पात्र बने, गुरु हिरदे च शब्द वसाए, शब्द वस जाए, दुखों की निवृत्ति होएगी। इहदे नालों सौखा, इहदे नालों होर कोई शॉर्टकट रस्ता सुखी होण दा दुनिया च किते नहीं जे। महाराज कहंदे तू अज कर, हुणे सुखी होना तू। ये नहीं कि 10 दिन बाद होएगा, महीने बाद, ना ना, हुणे सुखी होके जाएगा। क्योंकि दुखी तू मन दे तलते है। तन दे रोगी होने नूं देर लगती है, तन दे अरोग होने नूं भी देर लगती है। मन दे रोगी होने नूं ना देर लगती है, ना मन दे अरोग होने नूं देर लगती है। गुरु ते इन्नी देर च कर हुक्म, मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां, बरियाइयां सह तुठे, नौनद पाइयां, सुखी होके चले जा, हो गया सुखी। यह गुरु का फार्मूला है। अगली पंक्ति जिस विच सतगुरु ने मेरा जीवन तुहाडा ते जेड़े जेड़े इहो जी सोच वाले ने उन्हां दा जीवन, 2 पंक्तियां च हुजूर ने कृपा की। नानक हौं हौं करते खप मोए, खोहन लख असंख।
जे तू आखे ना मैं बड़ा वड्डा इन्ना कर जा ये कर जा, कख नहीं, पता नहीं किन्ने काए थे। गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधकाई जिन तृण तार मूंड बुलाए। हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाई झूठी देही। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई, 12 जोजन छतर चले था देही गिरजन खाई। सर्व सोन की लंका होती रावण से अधकाई, कहाँ पयो दर बांधी आती किन में भई पराई। दुर्भाषा से करत टगौरी जादवी फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दियो हर गुण गाए। मेरी मेरी कर दे, मैं कर दे, असंख्या खूणियां दियां खूणियां तेरे तो कई सियाने चतर ते धनवान ते बलवान इथे खत्म हो गए। मिटे जिंदगी के अरमा कैसे कैसे, ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तू ते कादा विचारा है, तेरे तो वड्डे वड्डे तुरंतर इथे कबरां च दफनाए गए ने। नानक हो करते खप मुए कौन लख असंख, ते फिर बचदा कौन है होमे तो। सतगुर मिले सो उबरे साचे शब्द अलंक। अलख अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दी हुजूर दी मालिक दी जेड़ा शरण विच आ जाए, जिन्हों पूरा गुरु मिल जाए ते गुरु दी मत नाल जेड़ा अपने जीवन दा निर्वाह कर ले, वो फिर जीवन दा सदैव सुख माणदा है। इस जीवन दा ही नहीं बल्कि यह लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुलां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।